So welcome in this first video class of our subject design of reinforced cement concrete, and we will begin from unit 3, 4, 5. Of course I have uploaded one small notes, two small PDFs of unit 3, but some students recommended that if there can be some further explanation through videos, then we are coming through this. Please stay tuned to the same place, Google Classroom, where I would be uploading these videos. Be regular. This will help you boost you or your confidence in the problems of design or based on RCC. So some further announcement. Actually we have 3 units left. So unit 5 is very easy. It's theoretical earthquake resistant design. So I thought since unit 3 and unit 4 both are design topics, so why not take a break in between and teach you unit 5, which you can find really very easy to understand, and I will provide notes for all the units that I am going to teach you now in the same manner as we have done in unit 1 and unit 2. So see, unit 3 I have unit 3 is actually I have already uploaded one notes of this. You must be remembering. So in this you are seeing this is a design of water tanks, but I must tell you, when I went through the syllabus, actually the syllabus is entitled as circular overhead tanks, and also design of a staging and foundations. So actually this content which I uploaded initially, actually it was designed by some of my friends, teachers, some of group of colleagues. So it was little extensive. You don't need to go through this completely, as a tank in itself is a big topic and it can be taught as a complete different subject. If you take MTech courses, there are different kinds of tanks which we will be seeing in this unit. So let's have a look in it. And why I said you this, actually when I went through the syllabus and what I uploaded, there was a vast difference. So I uploaded the next content, which was this. This is more relevant for you. Please go through this, and this one is not complete. The second portion of this unit is yet to come. I will soon upload it. So let's go through the first PDF first. Design of water tanks. So do not neglect this PDF. This is important. Of course there are some IS code recommendations that has been very elaborately included into it, so you must go through this. So let's see in some introduction part. Of course, when we talk of tanks, so it must be used for storage value, and storage can be like this. Storing water for what? Storing a storage tank. Storage of what? Some water, liquid petroleum. Just like you must have seen some of the petrol pumps, they used to get petroleums from some RMC like van, and I have seen in Delhi near new industrial area, there are many IOCL plants and HPCL plants, and they used to store huge amount of petroleum in a large spherical cylindrical water tanks like structures. So who made those structures? As a civil engineer we must know that these water retaining structures are basically the same water tanks, which we call it basically in common language. We designed it, so we should also have some basic we must have some basic knowledge of these. So these are not only used for water, petroleum, and there are many chemicals which are being stored into it. Like there are many chemical factories, they often use to build such tanks. And very important in it is, since it is a water retaining structure, you are going to contain a fluid. A fluid is not like just a simple solid. Keeping a solid is very easier, and as soon as you talk of some fluid,
It is very difficult because shear stress is very less and it can flow, and even a small crack can lead to complete loss of the fluid contained in it. So analysis and design of such tanks are independent of chemical nature of the product. So this one is also independent of chemical nature. Independent means no need to take worry of, as a civil engineer we don't need to go into the chemical details. If there are some chemical necessity, we must include it, and it is seen as per the demand, as per the need. They are designed as crack free structures. This crack free, again I am talking it because since it is a water retaining a structure, you have to eliminate any leakage at any cost. लीकेज कैन लीड टू, अगर एक डैम में अगर पूरा का पूरा अगर एक कहीं भी एक छोटा सा होल है तो वो होल सफिशिएंट है पूरे डैम को बर्बाद करने के लिए. इसीलिए आप जानते होंगे कि जितने भी हमारे डैम्स हैं दे आर हाईली प्रोटेक्टेड, हाईली सिक्योर्ड, नो एनी कॉमन मैन कैन विजिट, दिस इज़ कम्प्लीटली अंडर सर्वेलेंस. कोई भी आतंकवादी चाहें तो हमारे डैम्स को बर्बाद करके काफ़ी जान और माल की हानि कर सकते हैं. So let's see some more details. Adequate covers to reinforcement are necessary to prevent corrosion. Yes, because it is water retaining. Corrosion is one of the most critical risk involved in it to achieve imperviousness of concrete. So what do you think? What would be the quality of such a structure? Of course, this class is little video class, so I know you must be feeling little impersonal. So no problem. We will just see through it, whatever in it. So what is the basic quality of a structure which is going to retain some water in it? It must be impervious. First quality you must be, and it must be any leakage proof. It must be watertight because you are going to keep some fluid in it. And imperviousness in concrete can be attained with higher density of concrete. Any lower density of concrete cannot be used just simply. And of course, concrete of higher strength, not lower M20, M30. And there are different cement concrete which are available in the market which offer us different density. This we have seen in OPC 33, OPC 43, OPC 53. So here I have written already concrete, cement concrete ranging from 330 kg per meter cube to 530 kg per meter cube is recommended in order to keep shrinkage low. So this is OPC 33, OPC 43, OPC 53. Remember this 33, 43, 53 is not the what do you call it, compressive strength like that. No, it's not. It's the density of the concrete. So density of concrete is very important, very important for what? For imperviousness. Let's go through the classification of water tanks. So this what is the general classification? There are different kinds of tank based on different classification. So first one, if I consider it, this is the tanks resting on the ground. Tanks resting on ground. Sorry, this one is not working. So general classification, tanks resting on ground, elevated tanks supported on stacking, and underground tanks. We will see through it कि tanks based on positioning. एक तो टैंक हो सकती है जो कि जमीन पे रखी हुई हो. कैसे, कहाँ पे आपने देखा होगा ऐसा टैंक्स? जो मेनली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के कई साइट्स पे गए होंगे तो वहाँ पे हमने देखा है, जैसे कि अभी हमारी ग्राफिक है कि एक मेडिकल कॉलेज की साइट बन रही, वहाँ पे आपने देखा है एक वाटर टैंक जिसमें हम बेसिकली ईंटों को क्योर करने के लिए हमने ग्राउंड पे एक टैंक बना रखा है. सो दैट कैन बी अ बेटर एग्जांपल ऑफ वाटर टैंक resting on the ground. And of course the second example, overhead tanks, which is overhead tank. क्या है, नाम से ही पता चल रहा है overhead, which will look often in our colony. जैसे कोई टैंक होता है, पानी की टंकी होती है जो बड़ी सी आप देखते हो अपनी कॉलोनी में,
तो वो होता है ओवरहेड टैंक। एंड दिस इज सपोर्टेड ऑन सम स्टेजिंग्स एंड फाउंडेशंस। स्टेजिंग वो होते हैं जो पिलर्स होते हैं, जो एक टैंक पानी का टंकी होता है और उसके उस पर कई सारे पिलर्स लगे होते हैं। हम फिगर्स में अभी हम देखेंगे, मैं बताऊंगा उसमें क्या स्टेजिंग है। तीसरा है अंडरग्राउंड टैंक्स। अंडरग्राउंड टैंक्स आप अपने घर में भी देखते हो, जैसे कि बाथरूम, जैसे सीवर को हम जहाँ पे स्टोर एक तरीके से डंप कर रहे हैं, या फिर कोई पीछे में हम अपने कहीं पे पॉन्ड बना रहे हैं घर के पीछे, और फिर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा अंडरग्राउंड टैंक इन आवर कॉमन डे टू डे लाइफ। So that those tanks are underground tanks. So classification can be based on shapes also. Classification based on shapes. Shapes means circular tanks. Circular tank, अभी मैं ये बताना ही चाह रहा था कि circular tank, ध्यान दीजिएगा, circular tank is not a completely circular shape. It's circular in plan, not in elevation. एलिवेशन एक्चुअली सर्कुलर टैंक, मैं पता नहीं मुझे नाम इसे ऐसा क्यों दिया गया, पर अगर मुझे बेटर अगर अंडरस्टैंड करने के लिए बताया जाना चाहिए तो इसका नाम होना चाहिए सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकली बोलते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका कैसा शेप है। तो सर्कुलर टैंक कहना इनकम्प्लीट है, तो सिलेंड्रिकल इसे हमेशा याद रखिएगा। हम जो हमारे कोर्स में भी है क्या, ओवरहेड सर्कुलर टैंक। तो सर्कुलर टैंक का मतलब है, भूल जाइए सर्कुलर, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल का पता है सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर एक सर्कुलर प्लान होता है, लेकिन उसका एलिवेशन आपको एक रेक्टेंगल की तरह होता है। जैसे कि कोई भी सिलेंडर, आपने कोई भी एक बकेट देखा है, या फिर किचन के अंदर कई सारे आपके वेसल्स हैं जो सिलेंड्रिकल हैं। एक हमारा कॉमन पेन भी है, तो पेन भी सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर नहीं कर सकते। सर्कुलर कहते ही ऐसा मन में आता है जैसे फुटबॉल की तरह, तो वैसा भी होता है वाटर टैंक, उसे कहते हैं स्फेरिकल। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो आई विल शो यू द पिक्चर्स, डोंट वरी। सो देर आर फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप्स। पहला हमने बताया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजिशनिंग, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप्स। शेप्स पे क्या क्या है, सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक क्या है, इट्स अ सिलेंड्रिकल टैंक। सेकेंड वन इज रेक्टेंगुलर टैंक। अब ये रेक्टेंगुलर टैंक कैसा है, इसके भी हम फिगर्स में आपको बाद में दिखाता हूँ, या जस्ट सून अभी दिखाता हूँ। स्फेरिकल टैंक है, देन इंच टैंक एंड सर्कुलर टैंक्स विथ कोनिकल बॉटम्स। तो इन सभी का मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ, क्या पर्पज है, तो पर्पज बेस्ड क्या हो सकता है, वाटर प्यूरिफिकेशन टैंक्स, जस्ट लाइक इन सीवर प्लांट्स ऑफ देहरादून वी विजिटेड विथ योर सीनियर्स, एंड देयर वेर मेनी वाटर टैंक्स विच वाज मीन्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द supply water of Dehradun city. Imhoff tanks is, you must have studied it, Imhoff tube in your chemical laboratory. So Imhoff tank is used in chemical industries. Septic tank, of course you know it, where we dump our night soils and all the sewers. Water storage tank, that we make in our house also. Swimming pool, you all know. Classification based on material. So material can be steel tanks, RCC tank, pre-stressed concrete tanks. अब pre-stressed concrete आप अच्छे से समझते हो। मैसनरी टैंक्स भी होते हैं। कभी कभी हम अपने घर पे अगर छोटा सा टंकी बनाना होता है तो घर के छत पे भी हम बना लेते हैं ईंटों का। तो ईंटों से जब बनता है तो मैसनरी टैंक, स्टील अगर लोहे का बनता है तो स्टील टैंक, आरसीसी का तो आरसीसी, पीएससी। टैंक्स मेड बाय प्लास्टिक और पॉलीमर्स, इट कैन बी मेड, यू हैव आल्सो मस्ट हैव सीन सच टैंक्स। अगर जनरली आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर कौन सी टंकी होती है, कई सारी टंकियों का नाम है, मैं भूल रहा हूँ बेसिकली, लेकिन दोज आर ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स। सो लेट्स सी थ्रू द सम पिक्चर्स. By seeing these pictures you will be able to see what we have discussed till now. So which kind of tank, oh you have seen already the answer, okay. Now since you have seen what kind of tank it is, it's a tank which is resting on the ground. It's not overhead, it's not underground, it's resting on the ground. अच्छा, ये टैंक कैसी दिख रही है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्फेरिकल है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ
सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक बस कहने को है, पर इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, इसका पर्पज क्या हो सकता है? पर्पज कुछ भी हो सकता है, पर्पज अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा टैंक बना हुआ है तो ज़रूर ही कुछ गवर्नमेंट यूज़ के लिए होगा, तो वो हम छोड़ देते हैं, वो भी हमें पता नहीं। अच्छा, ये बना किस चीज़ से लग रहा है? बना हुआ इट्स लाइक अ आरसीसी टैंक। सो ओके, सो दिस वन इज़ क्लियर। टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, which kind of tank it is? Okay, this is not very obvious, but this tank is underground. You have to look through it. It's underground and it is rectangular tank. आपको दिख रहा है, एक साइड की फेस ये है, पीछे की फेस ये है, साइड की फेस ये, टॉप ये है, टॉप ये वाली है, और फिर दोनों साइड वाले हमारे ये हैं, पीछे वाली ये है, और ये रहा हमारा बेस। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है, बट इट्स अंडरग्राउंड टैंक। सिमिलरली दिस कम्स अगेन, इट मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरहेड टैंक। अच्छा, इसका शेप क्या है? दिस इज अ ओवरहेड, सिंस इट इज, हाँ ओके, इसका शेप क्या है? स्फेरिकल आप देख रहे होगे, ये रहा स्फेरिकल शेप इसका। तो ये स्फेरिकल शेप ये होना बहुत इंपॉर्टेंट। और वी कैन से इट्स सर्कुलर बट इट्स कोनिकल विलो, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसे। सर्कुलर तो है, सर्कुलर टैंक विथ कोनिकल बेस, वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस। इट्स ओवरहेड टैंक। और फिर ये किस चीज़ से बना होगा? ऑफ कोर्स ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बन सकता है या स्टील से, ये डिपेंड करता है। पर्पज क्या है ये भी देखना होगा। Similarly, this kind of tank you must have seen somewhere. Both of these are elevated tank. This one is elevated tank is completely conical, and this one is elevated tank which we must have seen in some of the industries. This I think of some foreign city. These both are example of elevated tank. Very easy to understand. Again, ये टैंक के बारे में डिस्कस ना करना बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि ये टैंक है जो कि हमारे हर कॉलोनी में हमें दिख जाता है। इस टैंक की बखूबी बात क्या है कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसे डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स यह आरसीसी टैंक है, इसमें मैसनरी वॉल्स भी यूज हुए हैं, ये रहा मैसनरी वॉल्स का भी होता है इसमें। लेकिन सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स हैं इसमें। लेट मी टेल यू, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्टेजिंग्स। स्टेजिंग, सॉरी काफ़ी ऊपर चला गया। इसे क्या कहते हैं? स्टेजिंग। ठीक है, स्टेजिंग। और फिर मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ। स्टेजिंग, जैसा कि स्टेजिंग एक टर्म है, इसे आप समझ सकते हो कि ये फाउंडेशन ये किस चीज़ से सपोर्ट है। जैसे कि कुछ बांस की बल्ली हम बनाते हैं, कुछ भी हमें जैसे लिंटल हमें डालना है घर की छत पे, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, उसमें हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये हड्डियों का ढांचा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शरीर उस पर सपोर्ट करता है। तो वैसे ही ये स्टेजिंग है ना, ये स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को, ये उसे रेज करते हैं ओवरहेड, तो इन्हें कहते हैं स्टेजिंग। अब इनका क्या पैटर्न होगा, कितने पिलर होंगे, ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइनर के ऊपर कि कितना लोड उस पर आ रहा है। और फिर ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन करेंगे। और फिर ये देखते हैं आगे। और स्टेजिंग के नीचे होता है फाउंडेशन, और स्टेजिंग के ऊपर होता है वाटर टैंक। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो टैंक है, नीचे का हिस्सा, नीचे इसके सबसे ग्राउंड पे क्या होगी, यहाँ पे इसके नीचे फाउंडेशन होगी, और ऊपर होगा टैंक अपना जो भी आपको दिख रहा है। सो ये टैंक में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि दिस इज कॉल्ड इंच टैंक। आई एम अगेन सेइंग यू, it's not just cylindrical tank, it's not circular tank, it's not that thing, it's inch tank,
INTZE, स्पेशल है, पहली बार नाम सुना होगा इसलिए लिख दिया। तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान से देखना। तो हमारा ये जो है टॉप वाला हिस्सा, ये है सिलेंड्रिकल कहो या सर्कुलर टैंक कहो, ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने अभी डार्क किया है ये सिलेंड्रिकल है। फिर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये कोनिकल है, ये कोनिकल है। और फिर एक और भी स्पेशल एक बीम यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये वाली एक बीम होती है, ये वाली, ये बीम कहलाती है सर्कुलर बीम। और इसके नीचे भी एक बीम होती है, ये भी कहलाती है क्या, सर्कुलर बीम। वैसे ही इसके ऊपर होता है एक डोम, स्फेरिकल डोम। तो इसमें कुल मिला करके हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, स्फेरिकल डोम 1, सर्कुलर वाटर टैंक वॉल 2, सर्कुलर बीम 3, कोनिकल वॉल 4, चौथा फिर से, और फिर फिफ्थ हो गया एक अगेन वन मोर सर्कुलर रिंग बीम 5, और एक अंदर, इसे ध्यान से देखिए आप, इसे अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ये जो है ये भी एक स्फेरिकल डोम होता है इसके अंदर। कुल मिला करके 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो एंड टैंक का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली देखे तो, ये पर ये है बहुत कॉमन, और इतना इतना ज़्यादा अभी ये कॉमन यूज हो चुका है कि इसके स्टैंडर्ड एकदम बिल्कुल आ चुके हैं बन करके। आप सॉफ्टवेयर्स, आप पैरामीटर्स डालो एंड यू कैन कीप लैक्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर इनटू इट एंड वी कैन यूज़ इट। जैसे कि हम डिसाइड कैसे करते हैं हमें कितने इंच टैंक चाहिए किसी भी सोसाइटी में, तो हमने शायद पढ़ा होगा LPCD। LPCD सुना है, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ये हमें पता चलता था, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक आदमी पे लगभग 130 लीटर पानी एक दिन में खर्च हो जाता है, ये एवरेज डेटा है। ऑफ कोर्स इसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब चीज़ का इन्वॉल्व हो जाता है। आप कहोगे सर मैं तो 20 लीटर से ही काम चल जाता है, पर नहीं, इतना लगभग हो ही जाता है, 100+ लीटर चाहिए होता है। अब उस एरिया की क्या पॉपुलेशन है, सेकंड फैक्टर ये होता है कि क्या पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है उस एरिया में। और फिर कोई भी डिज़ाइन बन रहा होता है, कोई भी टैंक बन रहा है, तो उस टैंक को 2020 के लिए नहीं बनाया जाता, नेक्स्ट 20 साल, नेक्स्ट 30 साल 40 साल को देख करके बनाया जाता है कि 2050 तक मुझे इस टैंक सर्विसेबल रखना है। तो उस वक्त तक की आबादी क्या होगी, उस वक्त तक की आबादी 2000, मतलब अगर मैं 30 साल का डिज़ाइन लाइफ मानूँ तो 2050 में जो आबादी होगी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, और उसको देख करके फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कितने वाटर टैंक मुझे बनाने हैं 2-2 लाख लीटर वाटर के लिए, फिर उनको कहाँ कहाँ सिटी में रखना है। तो इसकी ह्यूज इतनी रिक्वायरमेंट है और ये इतना कॉमन डिज़ाइन है कि इसके स्टैंडर्ड एकदम बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम ऑफकोर्स अभी हम नहीं जानते उसमें, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हेवी होगा। क्योंकि इसीलिए हमारे कोर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे सिलेबस में हमारे है सर्कुलर ओवरहेड टैंक। माइंड इट, सर्कुलर ओवरहेड टैंक इज़ नॉट सेम एज इंच टैंक। लिसन इट वेरी केयरफुली, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस, कि कोई भी इंच टैंक का प्रॉब्लम लेकर के आएगा, कहेगा सर आपने बताया नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आपको डिटेल से सीखना है। और भी कई सारे टैंक है जो हम नहीं पढ़ रहे यार, जैसे कि सर्कुलर टैंक, जैसे हम स्फेरिकल टैंक हो गया, कोनिकल शेप टैंक हो गया, रेक्टेंगुलर टैंक हम नहीं पढ़ रहे। टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, अंडरग्राउंड टैंक, आपको पता है अभी टैंक रेस्टिंग और ऑन ग्राउंड तो ईजियर है फिर भी समझना। टैंक अंडरग्राउंड टैंक में जाते ही हमें वाटर रिटेनिंग, सॉइल का रिटेनिंग एक्टिव प्रेशर लगने लग जाता है साइड वॉल्स पे, तो उनके डिज़ाइन के लिए भी बनाना होता है। तो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम उसमें अभी हम नहीं जा रहे। लेट्स ओनली डिस्कस, लेट्स कीप आवर फोकस ओनली टू दिस सर्कुलर ओवरहेड टैंक, वी विल सून सी इट। अगर अगेन अब आपको ये क्या कैसा टैंक दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर टैंक है, टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, और ये सेप्टिक कोई वाटर सेप्टिक प्लांट है वहाँ पे ये यूज हो रहा है, लाइक सेडिमेंटेशन टैंक। और फिर यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम environmental engineering course,
सो दिस इज ए सर्कुलर टैंक। ये सर्कुलर टैंक सर्कुलर दिखने में ऊपर से सर्कुलर दिखता है लेकिन होता सिलिंड्रिकल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा टैंक है? ये ऑफ कोर्स ये भी टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, एंड दिस टैंक इज रेक्टेंगुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, और आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर इट्स अंडरग्राउंड और रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, सीमिंगली ऑन ग्राउंड। तो अभी आपको क्लियर पता चल रहा होगा कई तरीके के टैंक्स हैं। ये है इंच टैंक। ये बेसिकली अभी हमने जो देखा उसमें बस हमने जो देखा और उसमें इसमें स्टेजिंग क्या किया है, इसमें कॉन्टिन्यूअस कर दिया गया है और कुछ भी नहीं डिफरेंस है। आपको इसमें ध्यान से देखिए, आप इसमें स्फेरिकल डोम को, ये टॉप वाले चीज़ को आप ध्यान से देख पा रहे हो, दिख रहा है ये स्फेरिकल डोम ऊपर से, जैसा मंदिरों में या मस्जिद में दिखता है ऐसा हमें ये, और इसके अंदर भी होता है कि यहाँ पे भी, ठीक है। इस पे अभी बननी है, अभी बाकी है स्ट्रक्चर, ये वैसे बनेगा अभी। तो ये है पार्ट, दिस इज अ ओवरहेड इंच टैंक। सो लेट्स गो थ्रू क्विकली what are the different factors that affect design and the selection of a water tank. Let's see it since we have included. तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है? टाइप ऑफ वाटर टैंक, जैसा कि हमने देखा, शेप ऑफ टैंक, ऑफ कोर्स ये भी हमने देखा, वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन अभी भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या यूज हो सकती है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ की लोगों की, कितना फायर फाइटिंग डिमांड, ये भी हो सकता है। वाटर लॉसेस, हाँ एक ये भी होता है कि जैसे हमारी सिटी में अगर हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं, खास करके यूपी या बिहार में, जहाँ पे पानी की काफ़ी चोरी होती है और फिर सप्लाई में, या फिर कोई भी, नॉट स्पेसिफिकली टू सम एरिया, बट दोज प्लेसेस वेयर वाटर लॉसेस एंड वाटर सप्लाई इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट थोड़ा कमज़ोर है, तो लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो लॉस ज़्यादा है तो आपको वो सब देख करके करना होता है कि उसी हिसाब से आपको सब कुछ देखना होता है। तो इस तरीके से, और अब देखो आपका क्या डिज़ाइन पीरियड है, कितने समय के लिए आप बनाने जा रहे हो, पॉपुलेशन फॉरकास्ट करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। क्लाइमेट कंडीशन, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपका अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की क्लाइमेट देखें और इधर अफ्रीकन कंट्रीज़, तो कंप्लीटली डिफरेंस है। हैबिट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, क्वालिटी ऑफ वाटर, प्रेशर रिक्वायरमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर कितना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब अगर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो बहुत ह्यूज प्रेशर चाहिए, तभी पानी जा पाएगा बहुत दूर तक। ऐसे कलिए इतना ज़्यादा हम इंडिया में करते नहीं, तो हम क्विकली हम देखते हैं कि हम बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पे हमें पानी की टंकी दिख जाती है, तो ज़्यादा प्रेशर रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हमें पहाड़ों पे पानी सप्लाई करना है तो आप बताइए प्रेशर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कि कम होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहाड़ों पे ऑफ कोर्स वहाँ पे पानी हम नीचे से सप्लाई करेंगे तो हमें ह्यूज प्रेशर रिक्वायरमेंट चाहिए। तो एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है आपके। और फिर क्या, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वी हैव सीन। पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड चार्जिंग मेथड, इफ़ समवन इज़ गोइंग इन PSU, अगर PSU में किसी की नौकरी लगती है तो वो ऐसे जॉब्स मिलते हैं जिसमें आपको मतलब देखना होता है कि जैसे कई सारे इलेक्ट्रिकल में जो मेरे दोस्त हैं वो आज कई सारे UPCL, IOCL, UPCL उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करते हैं और वो बिजली बिल वगैरह का चेक करते हैं डिपार्टमेंट। तो वैसे ही सिविल में भी ये सब चीज़ों को भी देखते हैं, जैसे कि क्या क्या किसके यहाँ कितना वाटर जा रहा है। Why don't discuss, why we are not coming to IS codes? Because every structure is designed based on the specification provided by IS codes. You must be familiar in RCC we have discussed from we study mostly. Okay, so we will discuss IS codes more detail in our next video. So we will meet again. Thank you.